On 11th July 2022, the United Nations released a report saying that India will surpass China as the world's most populous country by 2023. And within a mere 4 months, the world population will reach 8 billion. This number will peak in the 2080s with 10.4 billion, but many demographers believe that this could happen sooner than expected. With 2.3 billion people, Eastern and Southeastern Asia represent 29% of the global population, while Central and Southern Asia, with 2.1 billion, represent 26%. According to World Population Prospects 2019, a book by the Economic and Social Affairs Department of the United Nations, China with 1.44 billion and India with 1.39 billion represent 19 and 18% of the world's population. With one of the lowest fertility rates in the world, China's population is set to decrease by 31.4 million or 2.2%. China abandoned its one-child policy in 2016 after 35 years. While there is a net drop in birth rates in most developed countries with the replacement rate being below 2.1 children per woman, the rise forecast will primarily be concentrated in these 8 countries in the coming years. Even though India's replacement rate has reduced to 2 from 2.2 in 2015-16, India's population continues to rise more than other countries because, as previous generations have children, there are more people having children even though they're having fewer children than their parents. The population growth rate is also attributed to advancements in medicine, which is allowing more children to survive into adulthood and old age. While the world population is growing at its slowest since 1950, this is also a time when the environment is under utmost pressure. Another reminder for us to respect and conserve natural resources that have sustained us. A population decline for the first time in over 60 years. Last year in China, there were nearly 1 million less births than in the year previous. In fact, China's birth rate in 2022 was more than half what it was 10 years ago, with only 6.77 births per 1,000 people. A number that is 10 points below India's birth rate and 5 below France. But even more significantly, the amount of deaths in the country outweighed the births, the first such occurrence since 1961 during the rule of Mao Zedong. Much of the demographic downturn is a result of China's one-child policy, imposed between 1980 and 2015. But there are other reasons cited for the decrease. China is one of the most expensive countries in the world to raise a child. I don't plan on having kids, and even if I do get married one day, I really want to be in a relationship without children. A combination of factors which has resulted in a population that is getting older and older, fueling a genuine worry that one day China will not have enough people of working age to continue their role as a global superpower. Labour shortages that will also reduce tax revenue and contributions to a pension system already under pressure. It's worrying because young people don't want to have kids anymore, because the country's getting older and it creates pressure on society. Local governments have rolled out several measures in an attempt to encourage people to have more babies, including tax deductions, longer maternity leave and housing subsidies. But these steps are not expected to be enough to halt the long-term trend, and by 2035, a third of the population is expected to be over the age of 60. Now time for some good news and some bad news. The good news is that India is all set to win a race against China. The bad news is that it's the population race. Estimates say India could become the most populous country in 2023, that's next year. Currently, China holds that spot. Its population is 1.426 billion. India's population, 1.412 billion. Now, India is expected to beat China in a year. That's what the United Nations is projecting.
Now, is that a good thing or bad? More people means more competition for land, for resources, for everything. But there's a school of thought that believes that population is not necessarily bad. There's a concept called demographic dividend. It sees population as an opportunity, not a burden. They say more people equals more manpower equals more growth, and more growth equals a better economy. So how can that be bad? So that's demographic dividend for you in the simplest of words. China has been able to harness it. China converted its people into factory workers, and it turned the country into the world's factory. Can India do the same? More importantly, does India want to do the same? How can India harness the power of its people? Let's look at some numbers. Estimates show that between 2021 and 2041, India will have the highest working age ratio. More than half of the Indian population will be of the working age. Even today, every third person in India is 10 to 24 years old. So it's a young population, and it's an asset. The United Nations Population Fund says over the next 3 decades, 22% of the people entering the global workforce will be from India. 22%, almost a quarter. And that is a good thing. So the numbers are in India's favor. But how many of these people are skilled to meaningfully contribute to the economy? Are there enough opportunities and jobs for them? Today, in most cases, aspirants outnumber jobs. Take the case of Agnipath, the newly announced defense scheme. It's a good point of reference. There were 3,500 plus vacancies in the Indian Air Force for Agniveers. Guess how many candidates applied? Nearly 750,000, 750,000. That's 214 people applying for each position. In this case, the eligibility criteria was 10th pass, and for some roles, 10 plus 2 pass. But what if a job description asks for more? This is where India faces a challenge, the skill challenge. There isn't enough skilled labor to fill the existing vacancies. I'll show you more numbers. Between 2011 and 2017, India's working age population grew by 115.5 million. But the labor force grew only by 7.7 million. This is according to the State of Working India report. And it goes on to say that between 2011 and 2017, the workforce actually shrank by 11.3 million. In June 2022, India's unemployment rate was 7.8%. This is according to the Center for Monitoring Indian Economy. And this is where the demographic dividend theory begins crumbling. A growing population does not necessarily lead to a growing economy, not always. You see, to reap the demographic dividend, you need a skilled workforce. 26% of China's workforce has vocational training. What about India? Less than 5%. India may not be able to send its population to the fields, to manufacturing hubs and factories as China did, or for that matter, even to offices with computers. A survey by a tech giant found that 27.3 million people in India need digital training immediately. The future is digital, they say, and India has a lot of catching up to do there. Take a look at this UNICEF report. It says 47% of Indian youth won't have the skills needed to be employable by 2030. 47%. To harness the dividend of this demography, India needs to upskill. And that starts with quality education, also the willingness to participate in the workforce. Not every young person in India is working or allowed to work. In 2017, India's female labor force participation was 28.5%. What about men? 82%. And this discrimination can destroy the demographic dividend. Here's another challenge, healthcare. India needs a workforce that is fit enough to work. 57% of women aged 15 to 49 are anemic. Half of Indian adolescents are thin, short, overweight, or obese. And on this show, we've told you time and again how a worker's physical health has a direct impact on his or her output. Moral of the story? To harness the strength of a growing population, India needs to invest in health, in education, skill development, and digital literacy. India has ambitious programs in place like Khelo India, Skill India, Digital India. What it needs now is to use them better, because we're sitting on a tight timeline here. This golden period ends in 2055 or 56. After that, this pool of workers will start aging. So 3 decades is what India has to transform itself. Will the transformation be good or bad? That depends on the policies we implement today.
नमस्कार। दो बिग चेंजेस एशिया में दिखने वाला है। फर्स्ट, इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड सेकंड, द फर्स्ट टाइम आफ्टर 60 years द डेमोग्राफिक डिक्लाइन एज सीन इन चाइना। तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा ग्लोबल इकोनॉमी को और इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना हैज सीन द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन द फर्स्ट टाइम इन 1961। 1961 में जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ था उसका रीजन्स अलग है, अभी जो डिक्लाइन हुआ उसका अलग रीजन्स है। 1961 में इनका रीजन था कि जो माओ का ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक पॉलिसी थी, उसी का वजह से ये पॉलिसी हमारी जो 5 ईयर प्लान्स था, जब 2015 तक हमारी जो 5 ईयर प्लान चलते थे उसी प्लान का मॉडल था, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मॉडल था। तो इसमें क्या था, इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान मतलब एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड में इन्होंने क्या किया था कि माओ की जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थी ना, एक सडन रिफॉर्म्स लाए थे। जैसा अभी श्रीलंका में देखिए, जो सडन रिफॉर्म्स की वजह से उनका पूरा इकोनॉमी भी कोलैप्स हो गया था। जो ऑर्गेनिक ये ला रहे थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग ला रहे थे विथ सडन चेंजेस, विदाउट एनी प्लान और पब्लिक का विल का बिना। तो ऐसा ही उस टाइम पे हुआ था जब माओ ने एक डायरेक्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ला लिए थे, लेकिन उस टाइम का सोसाइटी और पॉपुलेशन रेडी नहीं था। तो उससे क्या हुआ, काउंटर इफेक्ट हो गया और एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस बन गया, क्योंकि उस टाइम पे चाइना एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, मोस्टली उसी के ऊपर डिपेंडेंट थी। बाद में 1980s के बाद वो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उसमें आया था, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे वो डिस्ट्रेस की वजह से, स्टारवेशन और सुसाइड की वजह से बहुत सारे डेथ्स हो गए थे। एस्टिमेशन था कि अराउंड 15 to 40 मिलियन। तो ये जो डेथ थे इसकी वजह से उनका डेमोग्राफिक बहुत ही क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे। अभी जो रीजन है, अभी जो डेमोग्राफिक डिक्लाइन हुआ है, ये माना जाता है कि जो चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी, भले ये 2016 में इसको तो स्क्रैप कर दिए थे, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी दिख रहा है। और जो इंडिया अभी मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाली है, तो ये बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं अभी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि इंडिया क्या इतना जॉब्स क्रिएट कर सकता है जो उसका जो लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। ये बड़ा क्वेश्चन है। अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया 2023 में तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री तो बन जाएगी, लेकिन क्या इंडिया इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी जो इसकी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको डेमोग्राफिक एडवांटेज में कन्वर्ट करने के लिए? लेकिन कुछ इकोनॉमिक का ये मानना है कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये कन्वर्ट नहीं किया तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर भी हो सकता है और डेमोग्राफिक बर्डन भी हो सकता है। तो इंडिया का जो हमारी जॉबलेस इकोनॉमी है, लास्ट 1 डेकेड से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारी ग्रोथ है वो एम्प्लॉयमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। मतलब द इकोनॉमी हैज फेल्ड टू क्रिएट इनफ जॉब्स। सो फॉर एग्जांपल देखिए, जो लेबर ब्यूरो है उसका एस्टिमेशन है कि 4.5 मिलियन एवरी ईयर जो नया लेबर फोर्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है, यंग पॉपुलेशन, लेकिन उसकी इनफ जॉब्स इंडिया क्रिएट नहीं कर रही है। तो इसका वजह से क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है इंडिया में। तो ये बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया जब ये इकोनॉमिक जॉब्स नहीं क्रिएट करेगा, जो ये हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड एक अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, ये बहुत बड़ा सोशल और इकोनॉमिक थ्रेट बनने का संभावना है। चंद्रशेखर श्रीपड़ा एक इकोनॉमिक प्रोफेसर है, वो जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाते हैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में। तो इन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया सिटिंग ऑन ए टाइम बम। जब ये इसका CNN को इंटरव्यू दे रहे थे तब इन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया था। तो इनका मतलब यही था कि इंडिया अभी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड पे चल रही है इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर और डेमोग्राफिक बर्डन में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये कुछ भी डेमोग्राफिक मतलब इंडिया इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं करेगा शॉर्ट टर्म में।
तो ये सोशल अनरेस्ट होने के लिए चांसेस है। तो इनका यही मतलब था। और रिसेंटली जो ऑक्सफैम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट में भी यही डिस्कस किया था कि जो इनइक्वालिटी है इंडिया में राइज होते जा रहा है, और इनइक्वालिटी इतना ही राइज होगा तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा दिखने में हमें संभावना है। तो इसका मतलब यही है कि अभी इनफ जॉब्स गवर्नमेंट क्रिएट नहीं करेगा तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। तो इसका इन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक थिंक टैंक है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इसका लोकेशन मुंबई में है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है इंडिया में वो ईयरली पब्लिश करती है। इसका एक एस्टिमेशन था कि इंडिया में दिसंबर 2022 दिसंबर तक इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट है 8.3% है। तो एक्चुअली बहुत सालों से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा तो पब्लिश नहीं कर रही है, लेकिन वो इस डेटा से तो एग्री नहीं करते क्योंकि उनका डेटा का उनका जो इंडिकेटर्स और उनका जो पैरामीटर्स है अलग ही है। लेकिन ओवरऑल तो एक बात तो ये है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बड़ा चैलेंजेस है, अभी का नहीं है ये 2 डेकेड से इंडिया का ये चैलेंज है। क्योंकि इंडिया का जो इकॉनमी है वो जॉबलेस इकॉनमी माना जा रहा है। इसका रीज़न एक ही है कि इंडिया का ग्रोथ तो दिख रही है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का तो टैग तो है इंडिया को, लेकिन ये जो जॉब्स जनरेशन में ना, जॉब क्रिएशन में इंडिया ये मैच नहीं हो रहा है कि इसका इकोनॉमिक ग्रोथ और ये जॉब क्रिएशन में। तो यही रीज़न है जॉबलेस इकोनॉमी होने का, और यही अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का भी रीज़न है। और इंडिया का और एक स्ट्रक्चरल रीज़न भी है कि इंडिया में देखिए जैसे चाइनीज़ इकोनॉमी होती है वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी में फोकस किया जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक है जो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इसका रेशियो ज़्यादा होता है। जब भी हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा ये देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जैसे चाइनीज़ ने 1980s में उनका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था तो इन्होंने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इम्प्रूवमेंट दिया था और एक चीप लेबर और कैपिटल मिला तो वो वर्ल्ड फैक्ट्री बन गई थी। तो इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया का थोड़ा सा हमारे जो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया का सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड इकोनॉमी ज़्यादा है। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाए, और हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अभी भी उसका जो कंट्रीब्यूशन है 45% एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन अराउंड 20% ही होता है। इस साल ही 20% हुआ है, नॉर्मली लेस देन 20% ही होता है। और इसके साथ जो पैंडेमिक है वो भी एक रीज़न है जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का। तो ये सब मिलके जो हमारी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, हिस्टोरिकल ब्लंडर बोल सकते हैं आप, तो उसका रीज़न अभी जो हमारी पैंडेमिक और हमारी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है इन सब का अमालगमेशन ही ये अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। वाई अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन इंडिया? ये तो अभी तो हम लोग तो इकोनॉमिक चैलेंजेस और इकोनॉमिक रीजंस तो जाने थे, लेकिन इसका इकोनॉमिक रीजंस तो ठीक है, इकोनॉमिक रीजंस और इकोनॉमिक ब्लंडर्स तो एक रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है हमारी एजुकेशन सिस्टम। ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट्स लोगों का मानना है कि ये देखिए जो इंडिया में है ना, इनका मानना है कि इंडिया में ना रोट लर्निंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसी का रीज़न है कि इंडिया में जो स्किल्स है वो बहुत ही कम होता है एम्प्लॉयज़ के पास। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम साउथ कोरिया ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं तो उनका पास वो स्किल्स होते हैं कि जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट होना चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या है ना, वो जो स्टूडेंट लर्निंग और इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट दोनों का मिसमैच है कि इंडस्ट्री क्या चाहती है वो स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। तो इसी का वजह से ही हमारे पास एक बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बनते जा रहा है ओवर द ईयर्स। आप कहीं पर भी चले जाइए कि साउथ कोरिया, चाइना, वो सब उनका जो कोर्सेस होते हैं +2 के बाद, और +2 में भी एक अलग से उनका ट्रेनिंग होता है कि स्किल्स डेवलपमेंट, कि उस टाइम का इंडस्ट्री क्या रिक्वायरमेंट है उसका बेस में वो ट्रेनिंग देते हैं। इसीलिए जब
वो स्कूल से आउट होते हैं, बाहर आते हैं, तो उनका रेडी होते हैं कि इंडस्ट्री क्या रिक्वायरमेंट उनको चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। यही मेजर रीज़न है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी भी कुछ सालों पहले उन बोले थे कि इंडिया में जो 9th और 10th और +2 ये 4 सालों में इंडिया को ना एक क्रैश कोर्स तरह इंट्रोड्यूस करना है, जो इंडस्ट्री स्किल्स रिक्वायरमेंट कोर्सेस जो भी है। तब क्या होगा कि जब ये पास आउट होगा तो उसके बाद 2 सर्टिफिकेट्स होंगे, एक स्किल सर्टिफिकेट होगा और एक जो स्टडी सर्टिफिकेट होगा। तो वो फर्दर स्टडी कंटिन्यू करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसको जॉब में करना है तो ये स्किल सर्टिफिकेट उसके लिए यूटिलाइज होगा। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी 10 साल पहले ही बोले थे, लेकिन अभी इंडिया ठीक है नेशनल जो एजुकेशनल पॉलिसी 2020 है, तो इसमें इंडिया ने कुछ चेंजेस लाई है, जैसे वोकेशनल कोर्सेस कुछ इंट्रोडक्शन किया है, तो इसमें भी चांसेस है कि कुछ चेंजेस आ जाएगा और इंडिया एक स्किल्स कैपिटल बनने का चांसेस है। इंडिया अभी ह्यूमन रिसोर्स का कैपिटल है वर्ल्ड का, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया अभी ये बस मिस हो चुकी है। क्यों? इंडिया अभी जो भी करना था ये 2 डेकेड पहले करना था, कि इंडिया को एस्टिमेशन करना था कि 2 डेकेड्स के बाद हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाली है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए और उसको कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड को एडवांटेज में कन्वर्ट करना है। ये इंडिया को 2 डेकेड पहले प्लान करना था, लेकिन अभी इंडिया बहुत लेट हो चुकी है, ये कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, जो बस मिस हो गई है फिर भी, और एक सेकंड बस पकड़ने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है इनका मानना है कि इंडिया को अभी ना नॉन फॉर्म जॉब्स क्रिएट करना है। नॉन फॉर्म जॉब्स क्यों? इंडिया का अभी भी गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 45% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ वो 18 to 20% का जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूटर है। तो ये देखिए इतना बड़ा मिसमैच है, जीडीपी में 80-20% कॉन्ट्रीब्यूट करती है और एम्प्लॉयमेंट में अराउंड 50% है। तो ये बहुत बड़ा मिसमैच है। तो इसके वजह से इंडिया को ना नॉन फॉर्म जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज, जो रूरल नॉन फॉर्म जॉब्स है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया को जो इकोनॉमिक बस मिस हो गया है अभी नेक्स्ट बस पकड़ने के लिए, और इसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करने के लिए। एक मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ये जो इकोनॉमिक कंसल्टेंसी है, ये इसने एक रिपोर्ट में ना इंडिया को ये कहा था कि जो 90 मिलियंस न्यू नॉन फॉर्म जॉब्स इंडिया को 2030 से पहले क्रिएट करना पड़ेगा, जब तभी ये इंडिया न्यू वर्कफोर्स जो है हर साल जो एंट्री हो रही है लेबर फोर्स उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इनका यही मानना था कि नॉन फॉर्म जॉब्स में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन जॉब सेक्टर पे, तभी इंडिया ये नॉन फॉर्म जॉब्स क्रिएट कर सकती है। देखिए अभी और एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि जो चाइना और वेस्ट का जो ये है, मतलब ट्रेड वॉर चल रहा है, टसल चल रहा है, और जो चाइना का 60 इयर्स के बाद जो डेमोग्राफिक डिक्लाइन हुआ है, क्या इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी है, क्या इंडिया ये यूटिलाइज कर सकती है? तो एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट मैंने उन्होंने अच्छे से डिस्कस किया था कि इंडिया का अभी भले समझ लीजिए जैसे एप्पल जैसे बड़े बड़े कंपनीज अभी इंडिया में आ रहे हैं और ज़्यादा फोन्स मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं, फिर भी जो इंडिया का जो फैक्ट्रीज है ना 14% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इनका यही मानना था कि ओवरऑल कि इंडिया का भले अपॉर्चुनिटी है लेकिन इंडिया यूटिलाइज नहीं कर रहा है अभी तक। क्यों? इंडिया का यही रीज़न है कि इंडिया का जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इसका जो एजुकेशन सेक्टर है और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है, ये बड़ा डिफिसिट है। तो इसी का रीजंस के वजह से ही इंडिया जो भी अपॉर्चुनिटी और ग्लोबल इकोनॉमी में स्पेस क्रिएट हो रहा है जो चाइना का वजह से, लेकिन वो स्पेस को ना प्रॉपरली इंडिया ये नहीं कर पा, यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। और ग्लोबल फैक्ट्री बनने का इंडिया के पास है, मतलब इसका पास स्ट्रेंथ तो है इंडिया के पास, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर रहा है और अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ये मानना है वर्ल्ड बैंक का।
इंडिया के सामने और एक बड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये इंडिया को इनफ है अभी। ये देखिए अभी जो आरबीआई और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का फोरकास्ट है कि इंडिया अराउंड 6.8 और 7% के अंदर ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा अगले 2-3 साल। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये इंडिया इतना जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएगा कि इतना जो डेमोग्राफिक को फुलफिल करने के लिए। तो इनका मानना है कि इंडिया को अराउंड 8 to 9% जो 8 to 9% जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये कंटिन्यूसली अगले 20 साल तक करना पड़ेगा, तभी ही इंडिया अभी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकता है। रघुराम राजन जी जो हमारी फॉर्मर गवर्नर थे उन्होंने एक अच्छा एडवाइस दिया था इंडिया को कि इंडिया को ऐसा नहीं है कि अच्छी जॉब्स क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सॉफ्टवेयर और जो प्रोग्रामर होते हैं कंसल्टेंट होते हैं ऐसे ही बड़े बड़े डॉक्टर्स ऐसा जॉब्स क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। इंडिया को ना एक डिसेंट जॉब क्रिएट करना चाहिए जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे, मतलब उनका सोशल सेफ्टी नेट हो और एक गारंटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, तो ये इंडिया के लिए इनफ है। मतलब यही इनका मानना था कि भले इंडिया अभी जॉबलेस इकॉनमी, बहुत लॉट ऑफ दिस ग्रोथ इज जॉबलेस इकॉनमी है, इंडिया का जॉबलेस ग्रोथ ही है, तो इंडिया को एक डिसेंट जॉब्स क्रिएट करना है ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए, ये इनका मानना। अभी इन सब रिपोर्ट्स के बाद हमें क्या कंक्लूजन क्या हो सकती है कि यही है कि जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि वर्ल्ड बैंक क्या कर रही है और मैकेंसी जो रिपोर्ट है वो क्या कर रही है, और रघुराम राजन जी का और आईएसबी स्कूल प्रोफेसर जी का जो स्टेटमेंट्स था उनसे क्लियरली यही इंडिकेट करता है कि इंडिया को ना नॉन फार्मिंग जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब जो एग्रीकल्चर का जो बर्डन है उसको हटाना पड़ेगा, और सेकंड इंडिया को ये करना पड़ेगा कि जो डिसेंट जॉब्स होते हैं, मतलब फॉर्मल जॉब्स विद सोशल सिक्योरिटी, ये जॉब्स इंडिया को क्रिएट करना पड़ेगा। और थर्ड इम्पोर्टेंट है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये विथ लेटर एंड स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स है जो स्किल्स डेवलपमेंट ला सकती है। जैसे इंडिया ने तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो चला रही है, लेकिन फिर इंडिया को ज़्यादा करना पड़ेगा, स्किल एंड रीस्किल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी ये इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है। और फोर्थ इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के अपने रिपोर्ट में कहा था कि इंडिया को ना 1 to 3 ट्रिलियन बिलियन चाहिए, कि $1 बिलियन चाहिए नेक्स्ट 10 ईयर्स में। जो इसकी इकोनॉमिक डिमांड है उसकी जो जब इकोनॉमिक डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए इंडिया को अराउंड 1 to 3 ट्रिलियन बिलियन डॉलर चाहिए। तो इंडिया को ये भी ध्यान पड़ेगा, मतलब ये है कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब एट द एंड कंक्लूजन में इंडिया को नॉन फार्मिंग जॉब्स, डिसेंट जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडिया को अभी नीड ऑफ द आवर है। तभी इंडिया ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको एडवांटेज में कन्वर्ट करेगा। थैंक यू।